सीतापति राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय। गोपिका जीवन स्मरण गोविंदा गोविंदा जय जानकी कांत स्मरण जय जय राम राम हर हर नम पार्वती पति हर हर महादेवा। सिद्धि विनायक स्वामी की जय, आंजनेय स्वामी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सवर साधुमल्ली की जय। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुभ शौनक भीष्मताल्प्यान् रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூல பாராயணத்துல நாம சீதா லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்ன ஹனுமத் சமேத ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பரபிரம்மனே நமக. நாம இப்போ வராக அவதாரம் மட்டும் பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். வராக அவதாரம் வந்து சுருக்கமான வராக அவதாரம் சொல்றாரு இல்லையா, முதல்ல அது வரைக்கும் பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் இப்போ வராக அவதாரத்தை விஸ்தாரமா சொல்ல போறார். வராக அவதாரம் வந்து வராக அவதாரத்தினுடைய காரணம் என்ன அப்படின்றத சொல்ல போறார், அதை பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பகவான்லாம் அவ்வளோ அந்யோன்யமானவர்கள். அதாவது ராதாகிருஷ்ணன்லாம் பார்த்தா எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, அங்கே ராதாகிருஷ்ண படத்தை பார்த்தாவே மனசு சாந்தி ஆகிடும். சீதாராமன் இருக்காரு, ராமச்சந்திர பிரபு ரொம்ப மரியாதையானவர், பெரிய மனுஷன். எந்த இதுவும் வச்சுக்க மாட்டார். நம்ம மனசு நம்ம புண்படுற மாதிரி நம்ம ஏதாவது கஷ்டமா இருந்தா அவர் பார்த்தோன்னே கஷ்டம்லாம் போயிடும். அதாவது நம்ம எதுவும் திட்டுற மாதிரி வச்சுக்க மாட்டார். அந்த அளவுக்கு நமக்கு கஷ்டங்கள்லேருந்து காப்பாற்றக்கூடியவர். அப்படிப்பட்ட மரியாதையாள ராமன் தான், ராமச்சந்திரமூர்த்தி. ராம 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 இடத்துல சரி ஒரு நிமிஷம். அதாவது பகவான் வந்து ராமச்சந்திரமூர்த்தி ரொம்ப சாத்விகமானவர். நம்மளுக்கு நம்ம எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் சரி அவரிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணா உடனே சரியாயிடும். அவர் நம்ம திட்டுற மாதிரி அவர் வச்சுக்க மாட்டார். நம்ம வந்து ஒரு எரிச்சலா கஷ்டமா இருந்தாருன்னா சாந்தப்படுத்துவார். சாந்தப்படுத்தி நமக்கு அமைதி கொடுத்து நல்ல உபதேசங்கள் பண்ணி நம்ம மனசை சமாதானப்படுத்துவார். அப்படிப்பட்ட ராமர் எங்க வீட்டில் இருக்கிற ராமர். ஆனா இதுல யாரு வாண்டுன்னா ஒரு சின்ன கிருஷ்ண ஒருத்தர் தான். இவன் தான் ரொம்ப வாள், ரொம்ப வாள். இவன் தான் ரொம்ப வாண்டு. இவன் என்னன்னா ஒரு புஷ்பத்தை வச்சா கூட வச்சுக்கோ கீழே தள்ளிடுவான். அவனுக்கு என்னன்னா பழம்லாம் வைக்கணும். இவனுக்கு ரொம்ப குசும்புத்தனம் நிறைய பண்ணுவான். இவன் தான் கிருஷ்ணன் தான் வந்து சின்ன கிருஷ்ணன் தான், குட்டி கிருஷ்ணங்கிறான் பாரு, அவன் தான் ரொம்ப வாண்டு. மற்றவங்க எல்லாம் டீசெண்டானவங்க, நல்ல நம்மளுக்கு என்ன கேட்டாலும் நம்மளுக்கு எல்லாம் செய்வாங்க, நமக்கு அனுகூலமானவங்க எல்லாமே. இந்த ராதாகிருஷ்ணனும் சரி மனசு நிம்மதியாக கொடுத்துருவோம். சீதாராமன் அப்படிதான். மகான்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, அவங்களோடலாம் பேசலாம் பழகலாம். எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சத்சங்கம் இங்கே. அதனால தான் நம்ம எங்கேயும் வெளியெல்லாம் போகிறத விட நம்ம வீட்டிலே சத்சங்கம் கிடைச்சிருக்கு. அது ஒரு பாக்கியம். குறும்புத்தனம் பண்ணாலும் அந்த குஷ்டி கிருஷ்ணன் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுதான் ஒரு ஜாலி. நான் உண்மையிலே போர் தொடங்குவதே உலக போர் தொடங்கக்கூடாது, இது உலக போராடக்கூடாது. 2 நாட்டுக்குள்ள அடிச்சுக்கிறாங்க, அதுக்காக தான் நம்ம பாராயணம் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஆனால் கடைசியில் அந்த பாகவதம் படிக்க
ஏதோ ஒரு கவலையில் இருந்த மனசு அது சரியா போய் மனசுல குதூகலத்தை உண்டாக்குது. இந்த பாகவத பாராயணம் மனசுல சந்தோஷத்தை உண்டாக்குது. அந்த அளவுக்கு பாகவதம் ரொம்ப ரொம்ப வசதி பாகவதம். அதனால பாகவதம் பாராயணம் பண்ணணும். ராம ராம ராமன் ராமநாமம் சொல்லி ஆரம்பிச்சு பாராயணம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு தான். சரி, ஓகே. இப்ப தியான ஸ்லோகம் சொல்லி பாராயணம் பண்ணலாம். இல்லை, நம்ம வராகவதாரம் ஃபுல்லா பூர்த்தி பண்ணிட்டு அப்புறம் பண்ணலாம். ராம 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 இந்த வராகவதாரத்தோட பூர்த்தி பண்ண இல்லையா, சுருக்கமான வராகவதாரம். அது இப்போ நம்ம முழுசா பாராயணம் பண்ணலாம். ராம ராம ராம. இப்போ நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பகவான் இவங்கெல்லாம் நம்மளோட பேசுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்களோட அவ்வளோ ஸ்நேகம். இருந்தாலும் நம்ம கஷ்டம்னா நம்ம தெரிவிச்சுப்போம், பேசுவோம். அவர்கள் அதுக்கு உடனே நமக்கு சொல்யூஷன் பண்ணுவாங்க. வெளிப்புறமா அது விவகாரங்கள்ல நமக்கு தெரியும். வெளி விவகாரங்கள்ல நமக்கு அந்த சாந்தியை மனசுல காமிப்பாங்க. அந்த கஷ்டத்தை போக்குறத பார்க்கலாம் நம்ம. அப்படி சரி, ஓகே. ஸ்ரீ ஹரே நமஹ ஸ்ரீ ஹரே நமஹ ஸ்ரீ ஹரே நமஹ. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா. ஜெய் ஜானகாந்த ஸ்மரணம் ஜெய் ஜெய் ராம ராமா. இப்ப தசை மாத்தி உட்காந்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த தசையில இருக்கோம், இப்ப இந்த தசையில உட்காந்துருக்கோம். இதான் நல்லா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு பகவானை பூஜை பண்றதுக்கு. அதாவது பாராயணம் பண்ணிட்டு போயிடலாம், ஆனா இந்த உள்ள சுவாரஸ்யம் இருக்கு பாருங்க, அது வேற. பாகவதம் படிக்கணும்னா அதுக்கெல்லாம் பகவானுடைய அனுகிரகம், மகானுடைய அனுகிரகம் வேணும் கண்டிப்பா. வினா மகத்பாத ரஜோபிஷேகம். அதுக்கு மேல நம்ம புத்தியில தோணணுமே பாகவதம் படிக்கணும்னு. அப்போ நம்ம ஒரு பொது நலத்துக்காக செயல்படணும்னு நினைக்கும் போதுதான் அந்த நம்ம சுயநலமும் நிறைவேறும். நம்ம சுயநலம்னா பாகவதம் நான் படிக்கணும்னு நினைச்சா படிக்க முடியாது. ஆனா உலக அழிவுக்காக ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணமே. இந்த உலக அழிவு போது உலகத்துல மக்கள்லாம் அழியிறாங்களே, அது நம்ம உலக சமாளத்துக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு நம்ம நினைச்சோம்னா உடனே பாகவதம் படிக்க வைப்போம். அப்படிதான் படிக்க வச்சது. அப்படிதான் இந்த பாகவதம் படிக்க வச்சான். நீ உலகத்துக்கு பிறருக்கு நன்மை நினைக்கும் பொழுதுதான் உனக்கு நன்மை ஏற்படும். பகவானுடைய நீதியே தான். நீ உலக க்ஷேமத்துக்காக பயன்படும் போதுதான் உனக்கு பகவான் ஸ்ரேயஸை கொடுப்பான். நீ உன் சுயநலத்துக்காக மட்டும் நீ பாராயணம் பண்ணோம், நாம சொன்னா அது அவ்வளவு பெருசா பலன் கொடுக்காது. ஆனா நீ உலகத்துக்காக செயல்படும் போதுதான் பகவான் படா பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுப்பான், நிம்மதியா படிக்க வைப்பான். அதுக்கான கம்ஃபர்டபுளா, அதுக்கான அனுகூலமா செயல்கள்லாம் நம்ம டென்ஷனா செய்ய மாட்டோம். அனுகூலமா அந்த பூஜைகள்லாம் அனுகூலமாக்கி தத்துருவான். எல்லாமே சுலபம். அக்லிஷ்டக்காரன் அக்லேசம் இல்லாம காரியத்தை முடிச்சு கொடுத்துருவோம். எப்ப நான் பிறருக்காக நீ செய்யறல, பிறருக்காக செய்யும் போதே பகவான் ரொம்ப சந்தோஷமா அடிச்சிருவோம். அதுதான் கிருஷ்ணனும் டைரக்டா சொல்றானே, இந்த மரங்கள் பார், அது தன் காய்களாலும் கனிகளாலும் பூக்களாலும் தன் பட்டைகளாலும் தன்னுடைய வேர்களாலும் தன்னுடைய தண்டுகளாலும் தன்னுடைய இலைகளாலும் கிளைகளாலும் பிறர்க்கென்றே உதவுகின்றது. இந்த மரங்கள் 10ஆம் ஸ்கந்தத்துல கிருஷ்ணன் சொல்றான். அவைகளுடைய வாழ்க்கை தான் அவருடைய பிறவியே உயர்ந்த பிறவி. அந்த மரங்களை பார்த்து போடுறார் பகவான். அவைகள் தங்களுக்குன்னு எதுவும் எடுத்து வச்சுக்கிறதில்லை, எல்லாம் பிறருக்குன்றே பரப்புறதாக. தன்னை நாடி வரவங்களுக்கு வெயில தான் வாங்கிட்டு அந்த தாடி வரவங்களுக்கு வெயில் நிழலை கொடுக்குறது, குளிர்ச்சி கொடுக்குது, அவங்களுக்கு ஆசுவாசம் கொடுக்குது, அவங்களுக்கு பசி எடுத்தா அவங்களுக்கு பழங்களை கொடுக்குது மரங்களானது. அப்போ மனுஷனா பிறந்த நாம எந்த அளவுக்கு இந்த உடலாலும் வாக்காலும் மனசாலும் பிறருக்கு உதவணும் அப்படின்றது கிருஷ்ணன் சொல்றாரு அந்த 10ஆம் ஸ்கந்தத்துல. அதெல்லாம் படிக்கும்போது அருமையா இருக்கும். அப்போ இந்த உடல் எதுக்காக எடுத்தோம்னா பிறருக்கென்றே வாழ்வதற்காக தான், தன் சுயநலத்துக்காக கிடையாது. அது பகவத் சேவையாம அமையணும். உலக நன்மைக்காக இருந்தாலும் அது பகவத் சேவையாம அமையணும். அது ஸ்வதர்மமாவும் இருக்கணும். இந்த 3 ஒன்னா சேர்ந்துச்சுன்னா வெற்றி தான் வாழ்க்கை. சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம், பகவானை சந்தோஷப்படுத்துறது தான் நம்ம வெற்றியை அடங்கிறது தான். சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம், ஹரி சந்தோஷம் அடைகிறது தான் நம்ம வாழ்க்கையினுடைய வெற்றியை அடங்கிறது தான். பகவான் எதுல சந்தோஷம் அடைவான்? பிற ஜீவராசிகள் கருணை காட்டும் போது, உலக நன்மைக்காக பரந்த மன நோக்கத்தோடு செயல்படும் போது பகவான் சந்தோஷம் அடைவான். இவ்வளவுதான் விஷயமே. பாகவதத்தினுடைய நோக்கமே அதான். சரி, பாராயணம் பண்ணலாம். ராம் 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 ராம். சீதாபதி
राम श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंदे षण्वेद भक्त्या शवयेद ओषधिं जनार्दनस्या सुहृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सहलाशिषां प्रभो किं दुर्लभम ताभिरलं लवात्मभिः. இந்த வராஹோதர சரித்திரத்தை கேட்டா என்ன பலனா, நீ பகவானை நினைக்கிறது இருக்கட்டும், பகவான் வைகுண்டத்துல இருக்கிற பகவான் உன்னை நினைக்கிறான். நீ வராஹோதரன் கதை கேட்டியா, வராஹோதரன் கதை படிச்சியா, அப்போ அவன் ஹிருதயத்துல அந்த பக்தன் என்னுடைய வராஹோதர சரித்திரத்தை படிச்சான் அப்படின்னு ஹிருதயத்துல நினைச்சு சந்தோஷப்படுகிறான். பத்தியா என் கதை கேட்கறான், பத்தியா என் கதை படிக்கிறான், பத்தியா அப்படின்ட்டு ஹிருதி பிரசித்தி, ஹிருதயத்துல பிரசித்தி சந்தோஷம் அடைகிறான் பகவான். அதான் சொல்ற ஜனார்த்தனோ ஆசு ஹிருதி பிரசித்தி, சீக்கிரமாக நம் நிமித்தமாக பகவான் சந்தோஷம் அடைகிறானா இந்த வராஹோதர சரித்திரத்தை கேட்டா. ஆசுன்னா சீக்கிரம், ஜனார்த்தனன் ஆகிய பகவான் வைகுண்டவாசி. ஜனார்த்தனோ அஸ்யாசு ஹிருதி பிரசித்தி தஸ்மின் பிரசனே, பகவான் சந்தோஷம் அடைஞ்சா சகலாசிஷம் எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் பொழிஞ்சிடுவானா. ஆனா நம்மளுக்கு அல்ப விஷயங்கள்லாம் வேணாம், பகவானே வேணும்னு கேட்கணுமா, அதான் புத்திசாலித்தனமா. அதான் சொல்ற கிம் துர்லபம் தாபிர் அலம் லவாத்மபிகி, பகவான் சந்தோஷம் அடைஞ்சிட்டா எது துர்லபம் கிடைக்கிறதுக்கு. ஆனா லவாத்மபிகி தாபிர் அலம் லவாத்மபி, அல்ப சௌக்கியங்கள்லாம் அடைஞ்சது வரையும் போதும், வேணாம். ஆனா அனன்ய திருஷ்டியா பகவானே வேணும்னு கேட்கணுமா, அனன்ய திருஷ்டியோட அனன்யமா பகவானே எப்போ நினைச்சுனே கிருஷ்ணா ராதாகிருஷ்ணா நீ ஓணும், ராம சீதாராமன் எனக்கு ஓணும் அப்படின்ட்டு அனன்ய திருஷ்டியோட நம்ம வழிபட்டோம்னா குஹாசய ஸ்வயம் விதத்தே ஸ்வகரிம் பரப்பரம். அப்படி அனன்ய திருஷ்டியா பஜதாம் குஹாசய ஸ்வயம் விதத்தே ஸ்வகரிம் பரப்பரம், தானே தன்னையே கொடுத்துட்டானா அந்த ஹிருதயத்துல பகவான் தோன்றுகின்றானா. அந்த ஹிருதயத்தில் குஹாசய, அந்த குகம்னா குகையாகிய இந்த ஹிருதய குகையில வாசம் பண்ணக்கூடிய பகவான் தன்னை பிரத்யட்சமாக்கிறானா. அது மட்டும் இல்ல ஸ்வகதியும் கதம், அதாவது என்னன்னா தன்னுடைய வைகுண்ட பதவியும் கொடுத்துட்டானா பகவான். அப்படிப்பட்ட கோணாம லோக புருஷார்த்த சாரவித்து புராகதான பகவத் கதாசுதம். ஒரு மனுஷன் தர்ம அர்த்தம் காமம் மோட்சம் போன்ற புருஷார்த்தங்களுக்குள்ள எது சிறந்ததுன்னா இந்த முன்னாடி சொன்ன புராணங்கள்ல சொல்லக்கூடிய இந்த வராஹோதர கதையானது சாரமானதான். தர்மார்த்த காம மோட்சங்கள புருஷார்த்தங்கள்ல சாரமானது எதிரானா இந்த கிருஷ்ண வராஹோதர கதை கேட்கறதானா அப்படி சொல்லியிருக்காருங்க. ஹோ நாம லோகே புருஷார்த்த சாரவித்து, புருஷார்த்தத்துடைய சாரத்தை அறிந்தவர்கள் எதை சாரமானிக்கிறானா புராகதனம் பகவத் கதா சுதாம். இதை விட வசதியா வேற எதுன்னு நினைப்பாங்க மகான்கள்லாம். அதுதான் சொல்றாரு ஆபிய கர்ணாஞ்சலி பபா அபகாம் அஹோ விரஜேத வினாநரேதரும். இதை என்னன்னா காதுகள் என்ற தொன்னைகளால அந்த பகவத் கதைகளை பருகி பருகி அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு இந்த சம்சார தாபமானது அபகரிச்சிடுமா, சம்சார தாபத்தை போகிடுமா. இது யாருக்கு பிடிக்காதுன்னா மனுஷனா பிறந்து மிருக வாழ்க்கையை வாழக்கூடியவர்கள், மிருகத்தனமான வாழ்க்கை வாழக்கூடியவர்கள். மனுஷனா பிறந்து பாகவதம் படிக்க பக்தி இல்லாம வாழறவங்க எல்லாம் மிருகத்தனமா வாழறாங்க, பக்தியோட வாழறவங்க தான் மனுஷத்தன்மையோடு வாழறாங்க. அதனால நிறைய தரம் அவர்களுக்கு தான் இந்த கிருஷ்ண கதை பிடிக்காது. யார் நாஸ்திகர்களுக்கு. மனுஷனா பிறந்து மிருகத்தனமா வாழக்கூடியவர்கள் ஒருத்தர் ரட்சிக்கிறது அவங்களுக்கு தான் இந்த கிருஷ்ண கதை பிடிக்காது. இந்த வராஹோதர பாகவதம் பிடிக்காதான், அவங்களுக்கு தான் வெறுப்பா இருக்குமே தவிர மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த பாகவதம் பிடிக்கும், வராஹோதர சரித்திரத்தை கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கும். இப்படிப்பட்ட பெரிய பெரிய பழங்களை கொடுக்கக்கூடியது தர்மார்த்த காமர்ச்சி எல்லா விதமான பழங்களை கொடுத்துருமா. ஆனா அந்த புருஷார்த்தத்தினுடைய சாரத்தை அறிஞ்சவன் என்ன பண்ணுவான்னா இந்த கிருஷ்ண பக்தியை தான், இந்த வராஹோதர சரித்திரத்தில் உள்ள சுவையை தான், அந்த பக்தி ருச்சியை தான் விரும்புவான். ஏன்னா பகவான் தன்னையே கொடுத்துட்றான் பக்தினால, அதை தான் விரும்புவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, அடுத்தது நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்த்துடலாம். ஏதோ கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்தேன், அது அர்த்தம் பேசணும். சரி, ஓகே. அப்புறம் 14வது அத்தியாயம், 3வது ஸ்கந்தம் 14வது அத்தியாயம். அத சதுர்தசோத்தியாய ஸ்ரீ சுகோவாச்ச விஷம்ஜ கௌசார வினோபவர்ணிதாம் ஹரே கதாம் காரண சுகராத்மனः புனஸ்ஸ பப்ரச்ச தமுத்யதாஞ்சலிஹி நச்சாதி திருப்தோ விதுரோ திருதவ்ரதः விதுரோவாச்ச विदुर्वाच देनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदित्यो हिरण्याक्षो हद इत्यनुशुश्रम तस्य चत्वरतः श्रोणिम स्वदंशाक्रेण लीलया तैतराजस्य च ब्रह्मण्य काम अस्मथेदुरअपुण्मृतः मैत्रेयवाच साधु वेद त्वया पृष्टम्
अवतार कथां हरेः यस्त्वं पृच्छसि मर्त्याणां मृत्युपाश विषादनीं युगोत्थानपदः पुत्रः युगोत्थानपदपुत्रः मुनिना गीतयार्भकः मृत्युकृत्यैव मुत्नि अङ्घ्रिम् आरुरोह हरे पदम् अदात्र अभि इतिहासो अयं सुधो मे वर्णित पुरः ब्रह्मण देवदेवेन देवाणामनुपृच्छताम् तिथिर्दाक्षायणे शत्रमारीचं कश्यपं पदिम् अपत्यकामाचकमे सन्ध्यायं हर्षयार्तिता यष्पाक्यजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पदिं निम्लोच्यत्यर्क आसीनम् अज्ञाहार समाहितम् तिथिर्वाच येष मां तत्कृते विद्वन् काम आत्मशरासनः तुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामिव मदङ्कचः तद्भवन्दह्यमाणायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजापतीनां भद्रन्ते मया युक्ताम् अनुग्रहं भर्तर्याप्तोरमाणानां लोकानाविशते यशः पतिर्भवद्विदो यासां प्रजयाननुजायते पुरा पितानो भगवान् दक्षो दुहित्रवत्सलः कं रणित वरं वत्स इत्यवृच्यते न पृथक् स विदित्वा आत्मजानं नो भावं सन्तानभावनः त्रयोदशाददात्तासां यास्ते शीलम् अनुव्रताः अदमे कुरु कल्याण कामं कञ्च विलोचन आर्तोपसर्पणं भुवन् अमोघं हि महीयसि इति ताम्बीर स्मारिचः कृपणं बहुपाशिनीं प्रत्याह अनुनयन् वाचः प्रवृत्तान् अङ्गकश्मलाम् एष देहं विदास्यामि प्रियं वीरु यदुच्यसि तस्य कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः सर्वाश्रमान् उपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवम् अत्येति जलयानिर्यदार्णवम् यामाहुरात्मनो स्यर्थं श्रेयस्कामस्य पाणिनि यस्यां स्वदरम् अत्यस्य पुंश्चरति विज्वरः यामाश्रित्न्द्रियारादिन् दुर्जयान् इतराश्रमैः यामाश्रित्य इन्द्रियारादिन् दुर्जयान् इतराश्रमैः वयं जयेम हेलाभिः दस्युन् दुर्गपतिर्यदा न वयं प्रभवस्तां त्वाम् अनुकर्तुं गृहेश्वरि आप्यायुषा वा कात्स्येन ये चान्ये गुणकृत्नवः अदापि कामं ये दन्ते प्रजात्यै कर्माञ्जलं यदा मम नादि वोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां बोधानि बोधेशानि चराणि एतस्यां सात्विसन्ध्यायां भगवान् बोधभावनः त्वरितो बोधपश्यद्भिः वृषेणाडति बोधरट्टे श्मशानचक्रानिलधूलिधूम्र विकीर्ण विद्योत जडाकलापः भस्मापकुण्डामल रुक्मदेहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते नयस्य लोके स्वजनपरो वा नात्यत्रतो नोत कश्चित् विकर्ह्यः वयं हृदयश्चरणापवित्ताम् आशास्महे अजं पद मुक्तभोगां यस्यानवत्या चरितं मनीषिणो गृह्णन्ति अविद्यापडलं बिभुत्सवः निरस्त साम्यादिशयो अभियत्स्वयं यशाचर्याम् अचरद्गतिः सताम् हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन् रथस्य अविदुषः समीहितम् यद्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपणैः स्वभोजनं स्वात्मदयो बलालितं ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विस्ममिदं च माया आज्ञाकरे तस्य पिशाचचर्या अहो विपुण्णश्चरितं विडम्बनं नैत्रिवाच सैवं संवेदिते पत्र मन्मदोन्मदितेन्द्रिया जक्राह वासो ब्रह्मर्षेर्वृषलीव गतत्रवा स विदित्वाद भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि दयाद उपविवेशः आदोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्य वाक्यतः ध्यायन् जटावगरजं ब्रह्मज्योतिः सनातनम् तिथिस्तु प्रेरिता तेन कर्मावत्येन भारत उपसंगम्य विप्रषिम् अधोमुख्याप्यभाषत तिथिर्वाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् बोधानं वृषभो वदित् रुद्रपतिः बोधानं यस्या करमम् अम्हसं नमो रुद्राय महदे देवाय उक्राय मीडुषे शिवाय न्यस्तदण्डाय त्रिदण्डाय मन्यवे सनप्रसीदतां भामो भगवान् ऊर्वनुग्रहः व्यातस्याप्य अनुगम्यानां स्त्रीणां देवः सदीपतिः मैत्रिवाच स्वसर्गस्याशिषं लोकस्याम् आशासानं प्रवेपतिं निवृत्तसन्ध्यानियमः बाध्यामाह प्रजापतिः कश्यपोवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान् मोहर्तिगादुद मन्निदेशादिचारेण देवानां चादिहेरणात् भविष्यदस्तवा अपत्रे जाडरातमौ लोकान् सभां स्त्रीं चण्डी
मुहुराक्रांत इष्यदः प्राणिनां हन्यमानानां दीनानाम् अकृदागसां स्त्रीणां निगृह्यमानानां कोऽपि देशो महात्मसु तदा विश्वेश्वरकृतः भगवान् लोकभावनः अनिश्यत्यावधिर्यासु यदा त्रीन् शतपर्वतर्க்கு तिदिर्वाच वदं भगवदा साक्षात् सुनाबोदरबाहुना तिदिर्वाच वदं भगवदा साक्षात् सुनाब उदारबाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा कृतात् ब्राह्मणात् विभो न ब्रह्मदण्डरक्तस्य न बोधभयतस्य च नारकाश्च अनुगृह्णन्ति यां यां योनिमसु गतः मैत्रेवाच कृतशोकानुतापेन सत्यः प्रत्यपमर्शनात् भगवत्पुरुमाणश्च भवेमय्यपि चादरात् वत्सशेवदुपुत्राणं भवेदैक सदा मतः गायन्ति यत्यश सुत्तं भगवत्यशसा समं योगे हेमेव दुर्वर्णं पापयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्चीलमनुवर्तितं यत्प्रसादादितं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं सस्वतृक् भगवान् यस्य दोष्यते अनन्यया दृशा स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महदां महिष्ठः प्रवृत्तभक्त्या क्षणुपाविदाशये निवेश्य वैकुण्ठमिमं विहास्यति अलम्बटशीलधरो गुणागरो हृष्टप्रत्य व्यदितो दुःखितेषु अबुधशत्रो जगतः शोकहर्ता नैदाघिकं तापं विवोढराजः अन्तर्बहिश्चामलम् अब्जनेत्रं स्वपुरुषेच्च अनुगृहीतरूपं पौत्रस्तपश्रीललामं भ्रष्टस्फुरत्कुण्डलमण्डितारणं मैत्रेवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोदत तिथिर्भृशं पुत्रयोश्च वदं कृष्णात् विदित्वा आसीन्ने महामनाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां तृतीयस्कन्धे तिथिकाश्यप संवादे चतुर्दशोऽध्यायः श्री नमः श्री नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम अंशने स्वामी की जय सुख महात्मा अथ पंचदशोऽध्यायः मैत्रेवाच प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजो हनं तिथिः तदार वर्षाणि सदम संगमाण सुरातनात् लोके तेन हदा लोके लोकपाल हदोजसः निवेदयन् विश्वसृजे त्वान्तं व्यधिकरं विदृशां देववचो तमप्येतद्विभो वेत्य संविघ्न यत्त्वयं प्रशम न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेन अस्पृष्टवर्त्मनः देवदेव जगत्तात् लोकनाथ शिगामणि परेशम् अपरेशं त्वं भूतानाम् असि भाववित् नमो विज्ञानवीर्याय माययेदम् उभेयुषे गृहीतगुणभेदाय नमस्ते अव्यक्तयोनिये ते त्वनन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोदभवनं परम सदसतात्मकं तेषां सुभक्वयोगानं जितस्वासेन्द्रियात्मनां लब्धयुष्मत्प्रसादानं न कुतश्चित् पराभवः यस्य वाचा प्रजा सर्वः गावस्तन्देव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमायत्तस्तस्मै मुख्याय ते नमः सत्वं विरस्वसं भूमं तमसा लुप्तकर्मणाम् अदप्रतया दृष्ट्या आवण्णान् अर्हशिक्षितं येष देवतिदैर्गर्भभोजः काश्यपमर्पितं तिथिस्तिमिरयन् सर्वा वर्तते अग्निरिवैदसि मैत्रेवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान् सप्तगोचरः प्रत्यचष्टात्मभूर्देवान् प्रीडन् रुचिरया गिरा ब्रह्मवाच मानसमे सुधा युष्मत्तु पूर्वजा सनकादिकः चेरुर्विहाय स लोहं लोकेश विगतस्पृहाः तये गता भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयम सर्वलोक नमस्कृतं वसन्ति यत्र पुरुषः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये अनिमित्तनिमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिं यत्र चात्य पुमानास्ते भगवान् सप्तगोचरः सत्त्वमिष्टप्य विरजं स्वानं न मृडयन् दृशः यत्र नैषयसं नाम वनं कामदुगैत्रुमहि सर्वत्र श्रीभिर्विप्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमत् वैमानिका सरल वैकुण्ठवर्णन वैमानिकाः सरलचरितानि यत्र गायन्ते लोकश्रवणानि पत्तुः अंधजले अनुविकसन्न मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियो अप्यनिलं शिवन्तः पारावदान्य प्रतसारस चक्रवाक दात्युः हंस सुगतित्तिरिबर्हिणां यः कोलाहल विरमदे अचिरमात्रमुच्चेत् भृङ्गादिभिः हरिगदामिव गायमाने मंदार कुंद कुरबोत्पल चंबहार्न पुन्नाक नाक बहुलांबुज पारिजाताः मंदार कुंद कुरबोत्पल मंदार कुंद कुरबोत्पल चंबहार्न कुरबोत्पल मंदार कुंद कुरबोत्पल चंबहार्न
पुन्नाक नाग बहुलाम्बुज पारिजाताः गन्धे अर्चिते तुलसिगा पर्णेन तस्याः यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति गन्धे अर्चिते तुलसिगा पर्णेन तस्याः गन्धे अर्चिते तुलसिगा पर्णेन तस्याः यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति यत्सङ्कुलं हरिपदान् अधिमात्रदृष्टिः वैदुर्यमारकथ हेम मयर्विमानिः येषां बृहत् कडितदाः स्मितसोऽपि मुख्यः कृष्णात्मनं न रज आदुर् उत्स्मयाद्यः श्रीरूपिणी कोणयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसत्मनि मुक्तदोष संरक्षते स्फटिककुट्य उपेत हेम्नि सम्मार्जतीव यतनुग्रहणे अन्ययत्नः वाविष वित्रमधडस्ममलामृताप्सु प्रेष्यान् विदा निजवने तुलसीभिरीशम् अत्यच्युते स्फलकमुन्न समीक्ष्य भक्त्रम् उच्चैषिदं भगवदेत्यमदाङ्ग यत्श्रीः यन्न रुजन्त अगपितो रचनानुवादः शृण्वन्ति ये अन्यविषया कुगदा मदिग्निः यास्तुता हद्बकैरन्टुभिर् आत्मसाराः तांस्तां श्रीवन्त्याशरणेषु तमुत्सहन्त ये अप्यत्युतामभिच्चनो जगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सकधर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता तया पदमायुजाते यश्च प्रजन्त्य अनिमिषां ऋषभानुवृत्य दूरे यमाशुभरिणः स्पृहणीयशीलाः भर्तृमेधस्व यशसः कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया फलकिकृताङ्कः यत्विस्म गुरुपदिकृतं वणैकवन्त्यं दिव्यं विचित्र विबुधाक्रिय विमानशोचिः आपु परम मुदम् अपूर्वम् उपेत्य योगं आपु परम मुदम् अपूर्वम् उपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदो विगुण्डं तस्मिन् अदित्य मुनय षडसज्जमानः कक्षा समान वयसापद सप्तमायां देवावचक्षद गृहीत कदौ परात्य केयुर कुण्डल किरीट विटङ्कपेशौ मत्तत्तिरेव वनमालिकया निवेदौ विन्यस्ते आसित चतुष्टय बाहुमध्ये भक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाप्यं रक्ते क्षणेन च मणाक्रपसं तदानौ त्वार्येदयोरनिविशुर्मिषदोर् अपृष्ट्वा पूर्वा यदा पुरडवज्र कपाटिकायाः सर्वत्र ते अभिशमया मुनयस्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्ति अभिगताभिसङ्गाः ये सञ्चरन्ति अभिगताभिसङ्गाः तान् वीक्षवादरसनां चतुर कुमारान् वृत्तान्त वयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खलिताम् अददर्शनां स्तौ तेजो विहस्त्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ ताभ्यां विशत्तस्वनिमिषेषु निषिध्यमाणाः वेत्रेण चास्खलिताम् अददर्शनां स्तौ तेजो विहस्त्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ ताभ्यां निषत्तस्वनिमिषेषु निषिध्यमाणः स्वर्हत्तमाख्यभिहरेः प्रतिहारपाप्यां वोचु सुहृत्तमतिदृक्षित भङ्ग ईशत् कामानुजेन सकसाद उदप्लुदाक्षाः मुनिवचो को वामि हैत्य भगवत्परिषज्य योच्यैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमस्वभावः तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वां को वा आत्मवृत्तिकुहयोः परिशङ्कनीयः न ह्यन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षौ आत्मानमात्मनि नभो नवसीपतिरः पश्यन्तु यत्र यवयोः सुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं क्षुतरवेति भयं यदोऽस्त्यं तत्त्वाममुष्य परमस्य विकुण्डवर्तुः कर्तुं प्रहृष्टमिह किधीमहि मन्ददीप्यां लोकानितो व्रजितमन्तरं भावदृष्ट्या पापीयशस्त्रय इमे रिभवो अस्ति यत्र तेषाम् इदीरतम् उपावपदाद्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणम् अस्त्रभूगैः सत्यो हरिरनुचरावुर्विप्यतस्तत् पादग्रहावपदताम् अधिकादरेण भूयात् अहोनि भगवद्भिरहारि तण्डो योनो हरेद सुरहेरणम् अप्यशेषम् मावो अनुदापकलया भगवत्स्मृतिघ्नः मोहो भवेद् ह्यदुनौ व्रजदोरधो अतः एवं तथैव भगवान् अरविन्दनाभः स्वानं विभूत्य सदधिक्रमम् आद्यहृत्यः तस्मिन् कयो परमहंसं महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रीः तं त्वागतं प्रति हदोपैकं स्वपुंभिः दे अचक्षदाक्षविषयं स्वसमाधिवाक्यं हंसश्रयोर्भजनयोः शिववायुलोल सुप्रादभद्र शशिकेसर शिखराम्बुम प्रश्नप्रसाद समुगम स्पृहणीय धाम स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तं श्यामे पृदा वरसिचो विदया श्रिया स्वच्छूडामणिम सुभगयन्तं युवात्मदुष्ण्यं पीतां सुख प्रतिनितम्पिनि विस्फुरन्त्याः काञ्चालिभिर्विरुदया वनमालया च वल्गुप्रकोष्ठवलयं वनदां सुदांसे विन्यस्तहस्तमितरेण दुनानमब्जं वित्युक्षिपण्णं मकरकुण्डलमण्डनार्हं
मंडलार्क गंधस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटम द्वदंड षण्ड विपरे हरदा परात्यहारेण गंधर गदेन च कौस्तुभेन अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितम् इंदिरायाः स्वानां दिया विरचितं बहुसौष्ठवाद्यम् मह्यं बपस्ति भवदं च भुजन्तम् अंगे नेम निरीक्ष्य नवितृप्त दृशो ओ मुदाकैः दस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्र तुलसी मकरन्त वायुः अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार देशं संक्षोभम् अक्षरजुषाम् अभि चित्तदन्वोः संक्षोभम् अक्षरजुषाम् अभि चित्तदन्वोः देव अमुष्य वदनासिद पद्मकोशम् उत्वीक्ष्य सुन्दरधराधर कुन्दहासं लप्ताशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयम् अंग्री त्वन्त्वनहारुणमनिशयनं निदत्युः पुंसां गतिं मृगयदामिह योगमार्गैः ध्यानास्पदं बहुमदं नयनाभिरामं वंशं दर्शयानम् अनन्यसिद्धैः औत्पत्तिकैः समक्रणन् युधमष्टभोगैः कुमारवचुः यो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं स्व अत्यैव नो नयनमूलम् अनन्तरात्तः यस्यैव कर्णविपरेण गुहां गदोनः पित्राणुवर्णितरः भवदुद्भवेन तन्त्वां विदाम भगवन् परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तं येषां यत्ते अनिदाप विद्यते दृढभक्तियोगैः उत्क्रन्तयो हृदि विदुर्मुनयो विरागः नात्यन्तिकं विकनयन्त्यविदे प्रसादं किन्त्वन्यदर्पितमयं कुर्व उन्नयैस्ते ये अंगत्वदङ्घ्रि शरणा भवद कलायः कीर्तन्यति यशसः कुशला रसज्ञाः कामं भव स्वजने नरयेषु नस्तात् चेदो अलिपत्यति नुच्यते कामं भव स्वजने नरयेषु नस्ताश्चेदो अलिपत्यति नुते पदयोरमेद वाशश्च नस्तुलसि वत्यति दे अंग्रिशोभाः पूर्यते दे गुणगणर्यदि कर्णरन्ध्रः प्रादुच्छकत्तगिरिदं पुरुहूत रूपं तेन निर्वृतिम् अवापुरलं दृशोणः तस्मायुधं भगवते नम इत्युदेमे यो अनात्मनां दुर्दयो भगवान् प्रतीतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां तृतीयस्कन्धे जय विजयो सनकादिशापनाम पञ्चदशोऽध्यायः श्री नमः गोपिकाचूर्णस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ षोडशोऽध्यायः ब्रह्मोवाच इदत् गृणतां तेषाम् इति तत् गृणतां तेषां वर्णनं योगधर्मिणां पदिनन्त्य जहादेदं विकुण्डनलयो विभुः श्रीभगवानुवाच एदोतो पार्षदो मह्यं जयो विषये एव च कदत्ते कृत्यमां यत्वः भक्वक्रादम् अतिक्रमं यस्तेदयो त्रुतो दण्डो भगवद्भिर्माम् अनुव्रतैः स एव अनुमतो अस्माभिर्मुनयो देवहेरणात् तत्प्रसादयां यत्य ब्रह्मदैवं परं हि मे तच्चित्यात्मकृतं मन्ये यत् स्वपुंभिरसत्कृताः यन्नामानि च कृष्णादिलोह भृत्ये कृदागसि यो असाधुवादस्तात्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवामयः सो असाधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवामयः यस्यामृत अमृतयश श्रवणावगाहः सत्यपुणादिजगदास्पवचात् विगुण्डः सोऽहं भवत्य उपलब्ध सुदीप्तिकीर्तिश्चिन्त्यां स्वभाहमपि वः प्रतिकूलवृत्तिं यत्सेवया चरणपद्मपवित्रेण सत्यक्षदाखिलमलं प्रतिलप्तशीलं नश्चिर्विरक्तमपि मां वजहादि यस्याः प्रेक्षालवार्त इतरे नियमान् वहन्ति नाहं तथात्मे यजमानं हविर्विधाने स्योदत्कृतप्लुतवदन् कुदभङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखदचरदानुकासं दुष्टस्य यजकर्मभागहे येषां विपर्मि अहम् अखण्ड विकुण्डयोग माया विभूतिर् अमलाङ्घ्रिरजक्रीडैः विभ्रांस्तुकोण विषहेत गिदार्हणाम्बः सत्यगुणादिस्कचन्द्रललामलोहान् ये मे तदुर्तुजवरान् दुहतिर्मदीया बोधान्य अलप्त शरणानि च वेदबुद्ध्या द्रक्षन्त्यकक्षतदृशो यहिमन्यवस्तान् गृत्रागृषां मम कुशन्ति अधितण्टनेदुः ये ब्राह्मणान् मयि यः श्रीपदो अर्चयन्तस्तुष्यत्रतः स्मितसुदक्षितपद्मवक्त्रः पाञ्जानरककलया आत्मजवत् गणन्तः सम्बोधयन्त अहमिवाहुम् उपाहृतस्तिः धन्मे स्ववर्तुम् अवसायम् अलक्षमाणो युष्मत्प्रतिक्रमगतिम प्रतिपत्य वसत्यः भूयो ममान्तिकमिदां पतनग्रहो मे यत्कल्पताम् अचिरतो मृदयोर्विवासः ब्रह्मोवाच
अदतस्योषधिं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीम् आस्मात्य मन्वितष्टानं देशम् आत्माप्यादृप्यत तेषाम् आत्माप्यदृप्यत सदिं जाताय शृण्वन्तो लक्ष्मीं गुर्वर्त गह्वराम एकाख्यगातगम्भीराम न विदुस्तत् चिकीर्षितम् जयोगमायया आरब्धं पारमेष्ट्य महोदयम् प्रोचुः प्राञ्जलयो प्राह प्रहृष्टा शुभिदत्वचः ऋषिवचुः न वयं भगवन् विद्मस्तव देव चिकीर्षितम् हृदो मे अनुग्रहश्चेदि यतत्यक्ष प्रभाससे ब्रह्मण्यस्य परं देवं ब्राह्मण किल ते प्रभो विप्राणं देवदेवानां भगवान् आत्मदैवतं त्वत्तः सनातनो धर्मः रक्ष्यते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यः निर्विकारो भवान् मतः तरन्ति ह्यञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्वित् अनुगृह्येत यत्परैः यं वै विभूतिर् उपायत् यं वै विभूतिर् उपायत्य अनुवेलमन्यैर् अर्थादिभिः स्वशिरसा तदपादरेणुः धन्यार्पिताङ्गुलि तुलसी नवदामकुदाम्नो लोकं मधुव्रतपदेरिव कामयान यस्तं विविक्तचरितर् अनुवर्तमानम् आत्यात्रियत् परमबाहपद प्रसङ्गः सत्वं तुजानपद पुण्यरज पुनीत श्रीवत्सलक्ष्मविकिमघ बहवाजनस्त्वं धर्मस्य दे भगवदस्य त्रियुग त्रिभिः स्वैः पत्तिश्चराचरमिदमत्वजते पदार्थं नूनं प्रथम तदिविदगादि अजस्तमश्च सत्तेन नो वर्धया तनुभावनिरस्य न त्वं तुजोत्तमफलं यदिहात्मगोपं गोप्ता वृषः स्पर्शनेन ससूदृतेन दर्श्यवनंक्षति शिवस्तव देवपन्था लोक अकृहीष्यत् वृषभस्य हि तत्प्रणमानम् दत्तानभीष्टमिह सत्त्वनिधेत् विदित्सोः क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुत्रुदारेः नैदावता त्रयधिपतिर्बत विश्वभर्तुर्देजक्षदमन्तु अवनतस्य न सदे विनोदः तम्बाणयोरतमम् आदेश भवान् विदत्ते वृत्तिं न वा तदनु मन्महि निर्जलेकम् अस्मा सुभाग्य उचितो त्रयदां स दण्डः यो अनागसो वयम् अयुक्ष्महि किल्बिषेण अस्मा सुभाग्य उचितो त्रयदां स दण्डो यो अनागसोः वयम् अयुक्ष्महि किल्बिषेण श्रीभगवानुवाच एदौ सुरेधरगतिं प्रतिपत्य सत्यः सम्भ्रम सम्प्रत समाधि अनुबत्त योगौ भूय सखासम् उपयास्यत आशुयोगः साभमयैव लिपितस्ततवैत विप्राः ब्रह्मवाच अद्वैतमणयो दृष्ट्वा नयनानन्तभाजनं वैकुण्ठं तत् विकुण्ठं च स्वयं प्रभं भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः संसन्तो वैष्णवीं श्रियं भगवान् अनुगावाह यादं मां वैष्णवस्तुषं ब्रह्मदेश समर्थोऽसि हन्तुं नेच्छे मदं तु मे एतत्परैव निर्दिष्टं रमया कृत्या यदा पुराववारिता द्वारि विशन्ति मय्युभारते मयि संरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेरणं प्रत्यक्ष्यदं निकासं मे कालेन अल्पीयसा पुनः स्वास्तौ आदिश्य भगवान् विमानश्रेणिभूषणं सर्वादिशय्या लक्ष्म्या दुष्टं स्वं दिष्ट्यमाविशत्ते दौद गीर्वाण ऋषभौ दुस्तरात् हरिलोकतः आदर्शयो ब्रह्म सापात्ता भूतां विगतस्मयो तदा विकुण्ठदर्शनात् तयोर्निबधमानयोः आहाकारो महान् असित्ति विमानक्रियेषु पुत्रकाः तावेव ह्यधुना प्राप्तौ पार्श्वदप्रवरौ हरेः इदे जडनिर्विष्टं हास्यवं तेज उल्पणं तयोरसुरयोरत्य तेजसा यमयोर्हिदवः आक्षिप्तं तेजयेदर्हि भगवंस्तत् विदित्सति यस्त्वस्य यस्थितिलयोद्भवहेतुरात्यो योगेश्वरैरविदुरत्यय योगमायः क्षेमं विदास्यति सनो भगवंस्त्रयदेशस्तत्र स्मदीय विमृशेन क्रियाणि हार्तः श्री हरे नमः शरण नमः गोविंद स्मरण गोविंद गोविंद ज्ञाने हार्तः अथ सप्तदशोऽध्यायः मैत्रेयवाच अथ सप्तदशोऽध्यायः मैत्रेयवाच निशम्यात्मभवागीतं कारणं शङ्कयोजिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिभावे दिवौगसः तिथिस्तु पत्रादेशात् अपत्य परिशङ्किनी पूर्णे वर्षसदे सात्वे पुत्रो प्रसुषुवे यमौ उत्पाद बहवस्तत्र निवेदर्जायमाणयोः दिवि भुव्यन्तरिक्षिच्च लोकस्योर्भयावहाः सह चल भुवंशैलदश सर्व प्रजज्वलुः शोल्काश्चासनयः
सोल्काश्चाशनयः पेदुखेदवश्चात्यहेतवः अवो वायुसुदस्पर्शः भूद्गारान्निरयन् मुहुः उन्मयन् नखपदिन् वात्यानिको रजत्वचः उत्तसत्तडिदं बोधगडय उत्तसत्तडिदं बोधगडय अष्टभागने यम्ने प्रविष्टतमसा न स्म यादृश्यते पदम चक्राशविमणाचात् वार्तिर्ऊर्मिः शुभिदोदरः स्वदबाणश्च सदस्य चक्षुभुः शुष्कपङ्कजः मुखो परितयो अभुवन्न सराह्व शशिसूर्ययोः निर्गत रथनिह्राद विवरेप्य प्रजज्ञिरे आन्ध्रग्रामेषु मुखदो वमन्त्य वह्निमुल्पणं सुगालोल खडङ्कारहि प्रणेतुर् अशिवं शिवाः सङ्गीतवत् प्रोदनवत् उन्नमय्य शिरोधरां यमुञ्चन् विविधा वाचो ग्रामसिंहं ततस्ततः हराश्च कर्कषैः क्षत्तः शुरैर्नन्तो धरातलं गार्काररभसा मत्तः पर्यतावन् वरोदशः रुदन्तो रासवत्रस्ता नीडात् उदपतन् कृगाः गोशारण्यच्च पशवः सकर्मोत्रम् अकुर्वद गावो अत्रसन् अशुक् दोहस्तोयदाः गावो अत्रसन् अशुक् दोयदाः भूयवशिनः जरुन्तन् देवलिङ्कानि त्रुमाः प्रेतुर्विनानिलं ब्रहाणपुण्यतमानन्द्ये बहणश्च विदीपितः आदिचेरुर्वक्रगत्यः योधश्च परस्परं पुष्पाण्यंश्च महोत्पादान् तत्त्वविद प्रजाः ब्रह्मपुत्रान् तुते वेदः मेणिरे विश्वं संप्लवम् तावति तैत्य सहसः व्यज्यमानात्म पौरुषौ वव्रतादे अस्मसारेण हायनात्रिपदी इव दिविस्पृशो हेम किरीटकोटिभिः निरुत्तकाष्ठौ स्फुरदङ्कदाबुचौ तां कम्पयन्तौ चरणे पदे पदे कट्यः सुकाञ्चार्कमधीत्य तस्ततुः प्रजापतिर्नामदयोरागाश्रित्य प्राक् स्वदेहात् यमयोरजायते तं वै हिरण्यकशिपं विदुः प्रजाहत्यन्तं हिरण्याक्षमसूद साक्रतः चक्र हिरण्यकशिपुर्दोर्प्यां ब्रह्मबलेनश्च अशेषबाणं लोहस्त्रीन् अकुतो मृत्युरुत्ततः हिरण्याक्षो अञ्जस्तस्य प्रीतिकृत्य अन्वहम् कदा बाणे दीपं जात योत्सुर्मृहयन् रणं ताम्पेक्षदुत्सहजवम् अणकाञ्चनलोपरं वैशिक्यन्त्य सचादृष्टम् अमम् असंयस्तमहागतं मनोवीर्यवरोत्सिक्तम् अशून्यम् अकुतोभयम् वेदनिर्जरे देवास्दाक्षदस्ता हिवाहयः सवै तिरोहितानि दृष्पः समाहसस्मेन दैत्यराट्टे सेन्द्रदेवगणान् शिवान् अपस्क्यन् व्यणदत्त वृषम् अधो निवृत्त क्रीडिष्यन् गम्भीरम् भीमनिष्पणम् यजगाहे महासत्त्वो वार्तिं वर्तयिवत्यवः तस्मिन् प्रविष्टे वर्णस्य सैनिका यादवगणः सन्नदीय ससात्वसाः अहन्यमाण अभितस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रतुत्रुवुः सवर्षभुगान् अणुदतु महाबलशरन् महोर्मिन् स्वसनेरिदान् मुहुः मौर्याभ्यजग्ने नदया विभावरिम् आसेदिवांस्तादपुरीं प्रचेतसः तत्रोपलप्स्यासुरलोकपालकम् यादवगणानां वृषभं प्रचेतसं स्वयं प्रलप्तुं प्रणिपत्य नीचवत् जहातमे देख्याधिराजसंयुगं तं लोकपालो अधिपतिर्बृहत्सभा विद्याबहो दुर्मदवीरमाणिनां विजित्य लोक अखिलदैत्यदानवान् यत्राजसूयेन पुरा यजत् प्रभो स एवम् उत्सिक्तमलेन वित्विषा दृढं प्रलप्त भगवान् अपां पतिः पुरुषं समुत्तं समयेन स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गदावयं पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यः संजिके त्वं रणमार्गकोविदम् आर्दिश्यत् असुरशपेहितं मनस्विनयं गृणते भवातृषाः तं वीरम् आराध्य अभिवत्य विस्मयः सयिष्यसे तं वीरम् आराध्य अभिवत्य विस्मयः सयिष्यसे वीरशये स्वभिर्वृतः यस्तत् विधानम् असदाम प्रशान्तये रूपाणि दत्ते सदनुग्रहेच्छया श्री हरे नमः श्री नमः श्री नमः गोविगाचरणस्मरणं गोविन्द गोविन्द अदाष्टादशोऽध्यायः मैत्रेयवाच तदेव मार्गण्य जलेशभाषितं महामनस्तत्त्वगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गस्नारदात् रसादलं निर्विशेत्वरान्वितः
तदर्श तत्रापि जिदं धरातरम् प्रणीयमाण प्रणीयमाण अवणिम् आक्रदंष्टया मुष्णन्तम् अक्ष्णा स्वरच अरुणश्रिया जहास चाहो वणकोचरो मृगः आहेन मेह्यग्नि महिं विमुञ्चमुदो अशोकसां विश्वसुजयम् अर्पिता न स्वस्ति अस्य श्रणया मवेक्षतः सुरादमासादित सुकराकृते त्वं न सपत्नरपवाय किं प्रदो यो मायया हरन्ति यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित्ते त्वां योगमाया बलम् अल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढप्रमृजे सुहृच्युचः तये संस्थिते गदिका शिष्ण यस्मत् भुजच्युतया ये च तुभ्यं बलिं हरन्ति ऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति अमूलाः सदुत्यमानो अधिदुरुक्तगोमरैः तंशाक्रगाम् उपलक्ष्य द्विधाम योदं ऋषन् जगत् अम्बुमत्यात् राह हतः सकरेणुर्यदेवः तन्नित्सरन्तं सरिडत् अणुत्रदो शरण्यकेशोत्करदं यथा चषः हरदंश अश्विनि निस्पनो अप्रवित् कथक्रियं किं त्वसदां विगर्हितम् सगाम उदस्तात् सरलस्य गोचरे विन्यस्य तस्याम् अददात् स्वसत्वम् अभिष्टद विश्वसुजात् प्रसूनैः आवुर्यमाण विबुधिः पश्यतो हरेः पराणशक्तं दपनीयोपकल्पं महाकथं काञ्चन चित्रदंसम् आत्मान्य अभिष्टम प्रदुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे शिवहणवाच सत्यमयम्बो अणुगोचरा मृगा युष्मत्पितान् मृगये ग्रामसिंहान् न मृत्युपाशः प्रतिमुक्तस्य वीरः विकत्तनन्दव कृष्णन्त्यपत्रे एते वयं न्यासहरा रसो कसां गतक्रियो गदया प्रापितास्ते तिष्ठामहे अदापि कदञ्चिदाजु स्वयं क्व यामो बलिनोत्पात्य वैरम् तिष्ठामहे अदापि कदञ्चिदाजु स्तेयं क्व यामो बलिनोत्पात्य वैरम् त्वं वत्रदानां खिल योधवादिवो कटस्पनो अस्वस्थया आस्पनोहः संस्थाप्य च अस्मान् प्रमुजाश्रु स्वगाणां यस्वां प्रतिज्ञां नादिविपत्य सप्यः हैदराबाद सो अधिक्षुप्त भगवदा प्रणतस्य ऋषापुरुषम् आजहारोल्पणं क्रोधं गिरिट्यमानो अहिराडिव सुजन् अमर्षितः रस्वासान् मन्यु प्रचलितेन्द्रियः आसत्य तरसा दैत्यः गदयाप्यहणत् हरिं बहुमस्तु गदाबेकं प्रसृष्टं रिपुणोरसि अवञ्चयत् तिरश्चीनः व्यवहारोड इवान्तकं पुनर्गदां स्वमादाय रामयन्तम् अभिक्षसः आप्यदावत् हरिकृतः संरम्भदष्टदच्छतम् अधश्च गदयारादिं दक्षिणस्यां ब्रुवि प्रभुः आजज्ञे सदुतां सौम्य गदया कोविद अहणत् एवं गदाभ्यां गुर्भिभ्यां हर्यक्षो हरिदेव च जिगीषया सुसंरक्तौ अन्योन्यम् अभिजक्तुः तयोस्पृतस्दिग्मगदा हदाङ्गयोः सदा स वक्रान् विवृत्तमन्यवोः विचित्रमार्गश्चरदोर्जिगीषया व्याबादिलायामेव सुष्मिनोर्मृतः दैत्यस्य यज्ञावयवस्य मायागृहीतवाराह धनुर्महात्मनः कौरव्यमह्यां त्रिशतोर्विवर्तनं चतुक्षराघात् ऋषिभिर्वरदस्वराट् आसन्न सौंदर्यम् अवेदसात्वसम कृतप्रदीघार महाद्य विक्रमं वलक्ष दैत्यं भगवान् सकर्षणिः जहाद नारायणम् आदिसूकरं ब्रह्मवाच येष देवदेवानाम् अङ्घ्रिमूलमुपैषां विप्राणां सौरभेयेन भूतानाम् अप्यनागसम् आगस्कृत्य भयकृत्य दुष्कृत्य अस्मत् रात्तवरो असुरः अन्वेषण अप्रतिरदो लोह नडदि कंडकः मैन माया विनं तृत्तम निरंकुशम् असत्तमम् आक्रीड बालवद्देव यदा आसी विषमुत्थितम् न यावदेशवर्तेद स्वां द्वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देव मायाम् आस्ताय तावज्जह्यगम् अच्युतम् एषा घोरतमा सन्त्यालोह चम्बत्करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन सुराणां जयमावह अधुनेशो अभिजिन्नाम योगो महोत्तिको ह्यगात् शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निरस्तर दुस्तरम्
विस्तर दुस्तरम दृष्ट्यात्वं विहितम मृत्युम दृष्ट्यात्वं विहितम मृत्युमयम आसादित स्वयं चक्रम जैन मृदे हत्वा लोहान आदेहि शर्मणि श्री हरे नमः श्री नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जालिकांत स्मरण जय जय राम राम अदे एकोनविंशत्ययः मैत्रिवाच अवतारे विरिञ्चस्य निर्बलिकां मृतं वचः रहस्यप्रेम गर्पेण तदवाङ्केन सो अग्रहीत् तदा सपत्नं मुखदश्चरन्तम् अवधोपयम् जहनोत्पद्य कथयः अनावसरम् अक्षजः सा हतातेन कथया विखता भगवत्करात् विघृणिता अपदत्रेचे तदत्पदमिवापवत् स तदा लप्तुतीर्थ अभिन बबादि नरायुधम् माणयन् समृते धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन् कदायम् अविवित्तायम् हाहाकारे विनिर्गते माणयामास तद्धर्मं सुनाभं चास्मरत् विभुः तं चक्रचक्रं स्थितिपुत्रादमेन स्वपार्षदमुख्येन विसज्जमानं चित्रा च वाचो अदत्विदं केचरणं तत्र स्मासन् स्वस्तिते अमुं जहीति सदं निशाम्यात् रताङ्गमक्रदो व्यवस्थितं पद्मपलासलोचनं विलोक्य चामष्टं परिप्रदेन्द्रियः वृषा स्वदन्तश्चदमादसश्वसन् करदंश्चक्षुभ्यां सञ्चक्षाणदहन्निव अभिप्रत्यस्वगतया अदो आसित्याहणत् हरिमे पदा सव्यनतां साधो भगवान् यज्ञसूकरः ललयामशतस्वत्रोः प्राहृत्य वादरं हसम् आह चायुधम् आदत्स्व कटस्पत्वं जिहीषसि योतीर्थ स तदा भूयस्ताडयन् व्यणदत्त वृषं तां स आपदतिं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः चक्राह ललया प्राप्तं वरत्मानिव पन्नहिं स्वपौरुषे प्रतिहते अदमानो महासुरः नैषद्गदाम् दीयमानं हरिणा विखलप्रभः जक्राह स्त्रीशिखं शूलं ज्वलज्वलनलोलुपं यज्ञाय कृतरूपाय विप्राय अभिचरन् यदा तदोजसाद्दैत्य महापडार्पितं चकासदन्तक उदीर्णदीदिति चक्रेण चिच्छेद निषादनेमिना हरिर्यदा दक्ष पदत्रमुज्जितं वृक्ने ससूले बहुधारिणा हरिः प्रत्यत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् तरुत्तरोषश्च खडोरमुष्टिना अदन्न प्रहृत्यान्तरदीयदासुरः तेन तमाहतः शत्रुर्भगवान् आदिसूकरः नागम्पदमणक्वापि सजा हदैवत्यवः अदोरुदा सुजन्मायां योगमायेश्वरे हरो यां विलोक्य प्रजास्त्रस्त मेणिरे अस्योपसंयमम् प्रभुर्वायवश्चाण्डस्तम पांसवमयरयन् दिक्भ्यो निवेद ग्रामाणः क्षेपणे प्रहिता इव त्योर्नष्टबहण प्रौगैः सवेत्यस्तनयुक्तभिः हर्षद्भिः केशाशुक् विन्मुत्रास्तेन च असकृत् किरय प्रत्युदृश्यन्त नानायुधमुचो अणक दिक्पासुसो यादतान्यः सोलिन्यो मुक्तमुत्तजाः बहुभिरक्षरक्षोभिः पत्यस्फरदकुञ्जरैः आददायिभिरुत्सृष्टा हिंसा वाचो अधिवैशसाः प्रादुष्कृतानाम् आयानाम् आसुरीणां विनाशयत् सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायुङ्क्तते त्रिवात् अदातिते समभवत् सहसा हृदि वेपतुः स्मरन्त्यवर्तुरादेशं स्तनाच्चासृक् प्रसुश्रुवे विनष्टास्वमायासु भूयश्चावर्ज्य केशवं ऋषोपगूहमाणो अमुम् अदृशे अवस्थितं बहिः तं मुष्टिभिर्विनिक्तं वज्रसारिरधोक्षजः हरेण कर्णमूले यदा त्वाष्टं मरुत्पतिः साहुद विश्वजिता ह्यवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्थलोचनः विशिष्णबाहुङ्क्री शिरोरुह अपदत् यदा नहिन्तो ललितो नभस्पदः हरेण कर्णमूले तं मुष्टिभिर्विनिक्तं वज्रसारिरधोक्षजः हरेण कर्णमूले अहन् यदा त्वाष्टं मरुत्पतिः स आहद विश्वजिता ह्यवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्थलोचनः विशीर्णबाहुङ्क्री शिरोरुह अपदत् यदा नहेन्द्रो ललितो नभस्पदः शिरोशयनं तमकुण्डवर्चसं करलदंशं परिदष्टतच्चतम् अजादयो वीक्ष्य ससंसरागदा अहो यमं को नु लभेद संस्थितिं यं योगिनो योगसमाधिना रहो ध्यायन्ति लिङ्गादसदो मुमुक्षया तस्यैष दैत्यऋषभः प्रदाहदो मुखं प्रपश्यंस्तदनुमुत्ससज्जः एदौ पार्श्वदापस्य सावत्यादौ असद्गतिम् एदौ पार्श्वदापस्य सावत्यादौ असद्गतिम् पुनः कतिपयः स्थानं प्रपत्स्येदेह जन्मभिः
देववचो नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीत अमल सत्वमूर्तये दृष्ट्या हदो अयम जगदां मरुन्तुदः दृष्ट्या हदो अयम जगदां मरुन्तुदः दृष्ट्या हदो अयम जगदां मरुन्तुदस्त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः मैत्रवाच एवं हिरण्याक्षम असह्य विक्रमं स साधयित्वा हरिरादिसौरः जगामलोह स्वमहण्डितोत्सवं समेलित पुष्कर विष्टरादिभिः मया यदानोक्तम् अवादिते हरेः कदापदारस्य सुमित्रचेष्टितं यदा हिरण्याक्ष उदार विक्रमः महामृदे क्रीडनवन्निराकृतः सुदुवाच इति कौशारवाक्यादाम् आश्रित्य भगवत्कदां शतानन्दं परं लेपे महाबाहवदोत्तेज अन्येष पुण्यश्लोकानाम् उत्तम यशसां सदाम् उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्गस्य किं पुनः योगजन्त्रं च शक्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करुणिनं शुच्यतो अमोचयत् त्रिदं तं सुखाराध्यं ऋषिभिः अनन्यशरणेन्द्रभिः कृतज्ञकोणसेवेद दुराराध्यम् असाधुभिः यो वै हिरण्याक्षपदं महात्पुदं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायति अनुमोदते अञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मपदादवित्यजाः एदन् महापुण्यमलं पवित्रं तन्येवशस्यं पदमायुराशिषां प्राणन्त्रियाणं युधि शौर्यवर्तनं नारायणो अन्ते गतिरङ्ग शृण्वताम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधो नाम एकोनविंशत्यध्यायः। श्री नमः श्री नमः श्री नमः। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम 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 सोलह साधु की जय राम 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 नारायण 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 हिरण्याक्षवादं पूर्ति अடைஞ்சது வராஹவதாரம் சரித்திரம் பூர்த்தி அடைஞ்சது அடுத்தது கபில வாசுதேவ அவதாரம் வரப்போகுது பார்க்கலாம் அதுவும் சத்யः சௌனுவாச்ச மகிம் பிரதிஷ்டா மத்தியஸ்ய சௌதே ஸ்வாயம் பூவமனுக கான்யான் கான்ய அன்பு कान्यन्पदिष्टत् द्वाराणिः मार्गाय आवर्जन्मनां शत्ता महाबाहवदः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृत् यस्तत्याचाक्रजं कृष्ण यस्तत्याचाक्रजं कृष्णे सापत्यम् अघवानिति तैवयनत् अनवरोह महित्य तस्य हे देहजः सर्वात्मना श्रितकृष्णं तत्परांश्चाप्यनुव्रतः किमन्वपृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया अपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम् अयो संवदतौ सूद प्रवृत्तः ह्यमला कदाः आवगङ्गा इवाकग्नेः हरे पादाम्बुजाश्रयाः दानकीर्तय पत्सन्ते कीर्तन्युदार कर्मणः असक्तकोण तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन् एवं उक्तश्रवा पृष्ठ ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्यर्पितात्यात्मस्ताणाः श्रूयतामिति भगवत्यर्पितात्यात्मः स्थानाः श्रूयतामिति सुदुवाच हरे तृतक्रोडतनोः स्पमायया निशम्य गोरुत्तरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षम् अवज्ञया हतं सञ्जात हर्षो मुनिमाः भारतः तद्रुवाच प्रजापति भगवत्यर्पितात्यात्मः तानाः श्रूयतामिति सुदुवाच हरे तृत प्रोडतनोः स्पमायया निशम्य गोरुत्तरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षम् अवज्ञया हतं सञ्जात हर्षो मुनिमाः भारतः तद्रुवाच प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजासर्ग प्रजापतिन् किम् आरभत मे ब्रह्मन् ब्रूहि अव्यक्त मार्गवित् प्रब्रूहि अव्यक्त मार्गवित् ये मरिच्यादियो विप्रयस्तु स्वायम्भुवो मनुः देवी ब्रह्मण आदेशात् कथमेतत् अभावयन् तत् सत्यधिया किमासुजन् स्वतन्त्राभूत कर्मसु आहुस्वित् संहता सर्व इदं समकल्पयन् मैत्रेवाच दैवेन दुर्वितर्केण फलेन अनिमिषेण च जातक्षोभात् भगवतो महानासित् गुणत्रयात् अज प्रधानान् महदस्त्रीलिङ्गो दैवचोदितात् जात ससर्जभूतादिः वेदादीनि पञ्चशः तानि चैकैकशः सृष्टुम् असमर्थानि भौतिकं संहत्य दैवयोगेन
हैममण्डम अवासुजन् सो अशिष्ट आप्ति सो अशिष्ट आप्ति सलिले आंडघोष निरात्मकः साक्रम वै वर्षसागरसम अन्वभासित तमेश्वरः तस्य नाभिर अबुद्बत्वं सहसार्को और सहसार्क उरुदिदिति सर्वजीवनिकायैको यत्र स्वयं अभूत स्वराट स्व अनिविष्ट भगवदा यस्येदे सलिलाशये लोकसंस्थं यदा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया ससज्जच्छायया विद्यं पंचपर्वणमकृतः तामिश्रम अंधतामिश्रम तमो मोह महादमः विसर्जात्मनः कायं नाभिनन्दं स्तमोमयं चक्रुः यक्षरक्षांसि रात्रिं शुत्रट समुद्भवां शुत्रभ्याम् उपसृष्टास्ते तम जक्तुम अभिदुत्रुः मा रक्षदेनं जक्षत्वम् इत्योचुः शुत्रदत्तिदाः देवस्थानाः संविघ्नो मामं चक्षद रक्षद अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजायोऽयं बभुविद देवदाः प्रभया याया दिव्यन् प्रमुखतो असुजत् दे आहर्षे देवयन्तो विशिष्टां तां प्रभामहः देव अदेवान् जगन्नतः सुजति स्मादिलोलुपान् तय्यनं लोलपतिका वैदनाया अभिवेदिरे तदो हसन् स भगवान् असुरे निरपत्रभिः अन्वीयमानस्तव तरसा कृत्वा वेद परापदत् स वभ्रज्य वरदं प्रबन्नाति हरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूप आत्मदर्शनं पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेन असुजं प्रजाः तायमा यपिदं पापा उपक्रामन्ति मां प्रभो त्वमेक किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेक क्लेशदस्तेषाम् अनासन्नपदां तव सो अवदार्यास्य कार्बन्य विविक्ता अत्यात्मदर्शनः विमुञ्चात्मतनं घोराम् इत्युक्तो विमोचः तं प्रणच्चरणां भोजां मदविक्वललोचनं काञ्ची कलाप विलसत् दुकूलचन्नरोदसम् अन्योन्यश्लेषयुत्तुङ्ग निरन्तरभयोतराम सुनासं सुत्वचं स्निग्धहासलीला अवलोकनां ऊहन्ति मृडया आत्मानं लीलालकं वरुदिनीं उपलप्त्यासुरा धर्म सर्वे सममुहुः स्त्रियम् अहो रूपम् अहो धैर्यम् अहो अस्या नवं वयः मत्य कामयमानानाम् अहमेव विसर्पति वितर्कयन्तो बहुधा तां सन्त्यं प्रमदाकृतिम् अभिसम्भाव्य विश्रम्भात् पर्यवृच्छन् कुमेधसः कासि कस्यासि रम्भोरुको वार्तस्ते अत्र पामिनी रूपद्रविणपन्येन दुर्भगान्नो विपादसे यावा काचित्वम् अबले दृष्ट्या सन्दर्शनं तव उत्सुनोक्षीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः नैकत्रते जयति सालिनि पादपद्मं क्लन्त्या मुहुः करतलेन पदत्पदङ्कं मत्यं विषीदति बृहत् स्तनं भारपीतं शान्तेव दृष्टिरमला सुसिका समूहः इति सायन्तलिं सन्त्यम् असुरा प्रमदायदिं प्रलोभयन्तिं जगुर्मत्वा मूढधियाश्रयं रहस्य भावगम्भीरं जगत्यात्मानम् आत्मना कान्त्य ससज्ज भगवान् गन्धर्वाप्सरसां गणान् विससज्ज धनु तां वै ध्वस्तां कान्तिमदिं प्रियां दयेव चातुदुः प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमः सृष्ट्वा बोधपिशाचांश्च भगवान् आत्मतन्द्रिणा दिक्पाससो मुक्तकेशान् वीक्ष्यः चामेळयत् तृषौ चक्रुहस्तत्विसृष्टां तां चुम्बनाख्यं धनुं प्रभोः मित्राम् इन्द्रियविक्लेदो यया बोधेश दृश्यते येन चेष्टान् दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते ऊर्जस्वन्तं मन्यमान आत्मानं भगवान् अजः सात्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेण असृजत् प्रभुः त आत्मसर्गं तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे सात्यप्यश्च पितृभ्यश्च कापयोग्यत् वितन्वदे सिद्धान् विद्याधरां सैव तिरोधानेन स्वासृजत् देव्य अददात् तमात्मानम् अन्धत्तानाख्यम् अद्भुतं स किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात्म्येन असृजत् प्रभुः मानयन् आत्मना आत्मानम् आत्माभासं विलोकयन् तेद तच्चक्रुहे रूपं त्यक्तं यत् परमेष्ठिना विधिनिभूय गायन्तः तमेवोषसि कर्मभिः निधुनिभूय गायन्तः तमेवोषसि कर्मभिः देहेन वै भगवता शयानो बहुचिन्तया सर्गे अनुपचिते क्रोधात् उत्ससर्जः तत्प्रभुः यो अहियान्ताम् उद केश अहयस्ते अंगस्य जग्निदे
सर्व प्रसर्बद क्रूरा नाग भोहोर कंतराः स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः अदामनं ससज्जान्ते मनसा लोकभावनान् तेभ्यसो अत्यसृजत् स्पेयं पुरम पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टः प्रशंसुः प्रजापतिम् अहो एतज्जगत्सृष्टः सुकृतं वद मे अहो एतत् जगत्सृष्टः सुकृतं वदते कृतं तदिष्टिता क्रिया यस्मिन् साकमन्नं वदामहे तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशः ससज्जापि मदा प्रजाः ऋषिकेशः ससज्जापि मदा प्रजाः देप्यश्चैकशः स्वस्यः देहस्यांशं मदातज्यः एतत् समाधियो हत्ति तपो विद्या विरक्तिमत्ते கண்ணு கட்டுது அப்படியே செதறுத வார்த்தது கொஞ்சம் தடுமாறுது ஸ்ரீ ஹரே நமஹ ஸ்ரீ ஹரே நமஹ ஸ்ரீ ஹரே நமஹ கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா अधियगुं सत्ययः विदुर्वाच स्वायंभुवस्य मनुर्वंशः परमसम्पदः कथ्यतं भगवन् यत्र मैथुने नैतिरे प्रजाः प्रियव्रत கஷ்யபருடைய தபசு கஷ்யபருக்கு பகவான் வெண்மை நிறத்துல பகவான் காட்சியளிக்கிறார் கிருதயுகத்துல அந்த சரித்திரம் இப்போ கத்தம சரித்திரம் வருது இப்போ அப்படியே கபில வாசுதேவ சரித்திரம் வரும் இப்போ நம்ம கத்தம சரித்திரத்தோட இப்போ பூர்த்தி பண்ணி போறோம் கர்த்தம மனு சம்பாதத்தோட பூர்த்தி பண்ணி போறோம் இப்போ ஓகே अधियगुं सत्ययः विदुर्वाच स्वायंभुवस्य मनुर्वंश परमसम्पदः कथ्यतां भगवान् यत्र मैथुने नैतिरे प्रजाः प्रियव्रत उत्तानपादौ सुतौ स्वायंभुवस्य वै यदा धर्मं जुगपतुः सत्त्वद्वीपवतीं महिं तस्य वै दुहिता देवब्रह्मण्ये देवहूदीति विश्रुता पत्नी प्रजापतिरुक्ता कर्तमस्य त्वयानघ तस्यां सवै महायोगी युक्तायं योगलक्षणैः ससज्जगदिता वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद वशिर्यो भगवान् ब्रह्मण्ये दक्षो वा ब्रह्मणसुतः यदा ससज्जभूतानि लब्ध्वापाद्यं च मानवीं मैत्रेयवाच प्रजा सुजयति भगवान् कर्तमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेवे तप मैत्रेयवाच प्रजा सुजयति भगवान् कर्तमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेवे सहस्राणां समादश अतः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्तमः संप्रवेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदासुषं तावत् प्रसन्न भगवान् पुष्कराक्षकृतेयुके दर्शयामास तं सत्तः शाब्दं ब्रह्म ततत्वभुः सदंबरजम अर्कापम सिद्धपद्मल बलसजम स्निग्ध नीलालह भ्रात वक्त्राब्जम रजो अंबरम किरीटिनं कुंडलिनं स्निग्ध नीलालह भ्रात स्निग्ध नीलालह भ्रात वक्त्राब्जम रजो अंबरम किरीटिनं कुंडलिनं संघ चक्र गदाधरम स्वेदत् बल क्रीडनकम मनस्पर्श स्मितेक्षणं विन्यस्त चरणाम्बोजम अंशदेश गरुत्मदः दृष्ट्वा के अवस्थितम् अक्षश्रियं कौस्तुभरत्नगन्धरं दृष्टागे अवस्थितम् अक्षश्रियं कौस्तुभगन्धरं जाद हर्षापतन् मूर्त्ना शिदो लप्त मनोरथः गीर्भिस्तप्य कृणात् प्रीतिः स्वभावात्मा कृताञ्जलिः ऋषिर्वाच जुष्टं पदात्याखिल सत्वराशेः सांसित्यम् अक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्म प्रीत्य सद्भिः आशा सदेयो किनु रूढयोगाः ये माय्यते हदमदे सस्तत् पादारविन्दं भवसिन्तु बोधम् उपासते कामलभाय देशं राशेष कामनर्ये अवियस्युः तदा सचाहं परिवोढ कामः समानशीलं गृहमेधतेनं उभय इवान् मूलम् अशेषमूलं दुराशय कामदुःखं कृपस्य प्रजापतिस्ते वचसाधीशतन्त्या लोहकिलायं कामहदो अनुबद्धः अहं च लोहान् कदो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय दुभ्यं लोकं च लोहान् कदान् पशुंश्च हित्वार्षितास्ते चरणादपत्रं परस्परं तत्कुणवादशीतु पीयूष निर्यापित देहधर्मः नदे अजराक्ष प्रमिरायुरेशं त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व षण्यप्यनुदच्छति यत्रिनाभि हरलस्रोतो जगदश्चित्यदावत् एक स्वयं सञ्जगतः सुषुक्षया त्रिदेयया आत्मन्या अधियोगमायया सुजस्यतपासि पुनर्कृशिष्यसे यतोर्नाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैदत्पदादेश पदं दवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वभिः यर्किमायया असत्तुलस्यादनुभावलक्षितः तं त्वानुभूत्योपरदक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् अमम्यभिष्टं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षं ऋषिर्वाच इत्यब्दलेकं प्रणदो अब्जनावस्तमापभाषे वचसामृतेन सुवर्णभक्षोपरि रोचमाणः प्रेमस्मितत्वीक्षण विप्रमद्ब्रूः शिवहणोच विदित्वा लवचैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदत्तमात्मनियमे त्वयैवाहं
यदा यदत्तमात्मनियमैः तयैवाहं समर्चितः न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजात्यक्षमदर्शनं भवद्विदेषु अधितराम मयि सङ्कल्पितात्मनां प्रजापति सुतः सम्राट् मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मवत्तव्यो आदिवसन् शास्ति शब्दार्णमां महिम सचेह विप्रराजऋषिः महिष्या शतरूपया आयास्यति ददुक्षुस्त्वां परस्पधर्मगोपितः आत्मजाम् असिता भाग्यं वयशीलगुणान्वितां गृह्यन्तीं पदिं दास्यति अनुरूपाय ते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेवन् परिवत्सरान् सात्वं ब्रह्मन् नृपवधुः हाममाशु भजिष्यति याद आत्मवृदं वीर्यं नवदा प्रसविष्यति वीर्यं तृतीय ऋषय आदस्यन्ते अंजसा आत्मनः पंच सम्यक् अनुष्ठाय यदेशं उसत्तम मयि तीर्थे कृताशेष क्रियात्वं मां प्रपत्स्यसे कृत्वा दयं च जीवेषु तत्त्वं च अभयम् आत्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् रक्षस्यात्मनि च विमां सहाहं स्वांशकलया तद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यं प्रणेष्ये तत्त्वसंहितां मैत्रिवाच एवं तमनुभाष्याद भगवान् प्रत्यक्षजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिषदात् निरीक्षितस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराविष्टुत सिद्धमार्गः आकर्णयन् वत्रदेन्द्रपक्षिः उच्चारितं स्तोमम् उदीर्ण साम अधसंप्रस्थिते शुक्ले कर्तमो भगवान् ऋषिः आस्त्यस्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनुष्यन्दलमास्ताय साधुहोम्परिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरम् सवार्य पर्यटन् महिम् तस्मिन् सुतन्पन्नाहनि भगवान् यत् समाधिसत् उभायात् आश्रमपदं मुनेः शान्तव्रतस्य दत्त यस्मिन् बहवो नेत्राणि न्यवदन् अश्रुबिन्दवः कृपया सम्परि तस्य प्रवण्य अर्पतया वृषं तत्त्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितं पुण्यत्रुमददाचालैः पूजत्पुण्यं मृगत्वजैः सर्वत्वफलपुष्पाट्यं वनराजे श्रियान्वितं मत्तत्विजय गणैर्पुष्टं मत्तभ्रमरविप्रमं मत्तबर्हिनडालोकम् आह्वयन् मत्तकोकिलं कदम्ब चंपका शोक करंज बहुलासनहि कुंदमंदार गुडज चूर्ण पोदिर अलंकृतम हारंडभिः प्लवैर्हंसहि कुररे जलकुक्कुडैः सारस चक्रवागश्च चकोरिर्बल्कूचितम् तदैव हरणे क्रोडैः स्वाविट् गवयकुञ्जरैः गोवच हरिभिर्मर्गैः नकुलिर्नाभिर्वृतम् प्रविश्य तत्तीर्थवरम् आदिराज सहात्मजः अदर्शमुनिमासीनं तस्मिन् हुदाशनं विद्योदमानं वपुषा तपस्युखरिजाचिरम् आदिक्षमं भगवतः स्निग्धाभङ्गावलोकनात् तत्व्याहृद अमृत कला पीयूष श्रवणेन च तत्व्याहृद अमृत कला पीयूष श्रवणेन च रांसं पद्मपला साक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंश्रित्य वर्णं यदार्हणम् असंस्कृतं यदोडजम् उपायादं हृदेव प्रणतं पुरः सवर्यया पर्यगक्षणात् प्रतिदन्त्यानुरूपया गृहीतार्हणम् आसीनं संयतं प्रणयन् मुनिः स्मरण भगवदादेशम् इत्याह लक्षणया गिरा नूनं संक्रमणं देव सदां संरक्षणाय दे पदाय च सदां यस्त्वं हरे शक्तिर्हिपालिनी ये अर्कन्ते इंतु अग्नि इंद्रवायुनां ये अर्क इंतु अग्नि इंद्रवायुनां यमधर्म प्रचेतसां रोबाणिस्थान आदत्से तस्मै शुक्लाय दे नमः न यदा रथमास्ताय जैत्रमणिगणार्पितं विस्फुज्य चण्डकोदण्डः अदेन स्त्रासयन्नहान् स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन् मण्डलं भुवः विगर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटंश्च अंशुमाणिव तदैव सेदवः सर्वे वर्णाशुभनिबन्धनाः भगवत्रचिता राजन् वित्तीर्णपदतस्युभिः अधर्मश्च समेदेते लोलुभिर्जङ्कुशैर्नृभिः शयने त्वय लोहो अयम् तस्युक्रस्तो विडङ्क्षति अदाभिपृच्छे त्वां वीर यदत्तं त्वं विहागतः तत्त्वयं निर्बलीकेन प्रतिपत्यामहे वये तत्त्वयं निर्बलीकेन प्रतिपत्यामहे हृदा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीये स्कन्धे एकविंशत्ययः आदत्वाविंशत्ययः मैत्रीवाच एवम् आविष्कृता शेष गुणकर्मोदयो मुनिं सवृडेवदं सम्राट् उपारदम् उवाचः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम 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 அதுதான் பூர்த்தி அடையுது. முதல் நாள் பாராயணம் பூர்த்தி அடையுது. இப்போதான்
இந்த கத்தம மனு சம்பாதத்தோட பூர்த்தி பண்ணிடலாம். கத்தம மனு சம்பாதத்தோட பூர்த்தி பண்ணிடும். स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमैषः गोब्राह्मणेभ्यः सोमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवीशास्त्रसरणि देशोऽयं शोभरविदा ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः पुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावत् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि. नारायणाय समर्पयामि. सर्वश्री रामस्तु राम 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 राम. அதுமே முதல் நாள் பாராயணம் பூர்த்தி அடைஞ்சிட்டு அடுத்த 2வது நாள் பாராயணம் அப்படியே இன்னைக்கே அப்படியே தொடங்கிடலாம். 2வது நாள் பாராயணமும் அப்படியே இன்னைக்கு தொடங்கிடலாம். 2-3 நாள் ஆகிப்போச்சு முதல் நாள் பாராயணம் முடியறதுக்கு. ஏன்னா ஒரே ஆள் படிக்கணும், கொஞ்சம் ஸ்டெமினா வேணும் இல்லையா, அதனால கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து படித்தேன். ஒரு 3 நாள் ஆகிப்போச்சு. ஒரு நாள் பாராயணம் முடியுது. சப்தாக முறையில் பார்த்தா முதல் நாள் பாராயணம் இப்போ தான் பூர்த்தி அடைஞ்சிது. ஆனால் ரெஸ்ட் எடுத்து படிக்கிறேன். 3 நாளாக பிரித்து படித்தேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அப்படியே இந்த 2வது நாள் பாராயணமும் இப்போ நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம். இன்னைக்கே ஆரம்பிச்சிடலாம் 2வது நாள் பாராயணம். இப்போ கபில வாசுதேவருடைய உபதேசம்லாம் வரும், அதெல்லாம் அப்படியே ஆரம்பிச்சிடலாம். கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஆரம்பிச்சிடலாம். ராம 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 ராம. முதல் நாள் சப்தாக முறையில் பற்றி முதல் நாள் பாராயணம் இப்போ பூர்த்தி அடைஞ்சது. இப்போ 2வது நாள் பாராயணம் இன்னைக்கே தான் ஆரம்பிச்சு படிக்கலான்ட்டு ஒரு ஆசை. பகவான் எப்படி வைக்கிறானோ வைக்கட்டும், அவ்வளோதான். ராம 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 ராம. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து படிக்கலாம். ராம 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 ராம. அதாவது பாகவதம் இது தேனு, இதை அனுபவிக்கிறேன்னா அனுபவிச்சு நேரலாம். எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் அது தித்திப்பா இருக்கும். சுவாது பதே எல்லாம் பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரமா சுவாமி தான் எனக்கு அடுத்ததே யாருன்னா பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரமா சுவாமி தான். அவர் தான் இந்த பாகவதத்துல ஆசையை தூண்டி விட்டு இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் வர்ஷிச்சு எனக்கு ஆசையை தூண்டி விட்டதே அவர் தான், பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரமா சுவாமி. காமிக்கிறேன். அவர்தான் பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரமா சுவாமி. அது போல பாகவதம்